Hello everyone, welcome back to my channel Literature and Literature. So today I'm going to talk about paper 1 and how you should go about it. I mean how I went about it and then deriving from that how you should go about it and what mistakes you should avoid and all of that I'll be talking about in a very subjective sense. I'm not going to give you points like do this. I'll tell you what works and what does not work, right? Because why experiment yourself when I have experimented already? So I mean, of course you will have to experiment, but the experimentation would be reduced if you take a good look. I'll try at least. Okay, so first thing first, the sources, right? The books, the videos online. What do you do? For me, KVS Madan is the best book. Maybe because this is the only book that I ever heard of and I read. I did not read the entire book. I will come to that how I did what. But this is one book I think you should go through. It's a very good book. Now, of course, a lot of books have come into the market, and new people are writing down books. But I will tell you one thing: read what everybody else is reading. Say today, if you were a beginner, say for example, maybe you've been in this preparation for like 1 year, say, so you have to realize that the people, the senior players as you call them, people who've been preparing since long are going to study this book because this is the one which was very famous back then, right? So of course there are new books in the market, but you have to do what everybody else is doing and then you do the value addition. You don't have to read the book in its entirety. I'll come to that. Before that, I'll tell you what YouTube channels you can follow and what I followed. I have followed all of these, four of them, and I think all of them do a very good job in a very different way. I mean, I picked up the good things from all of them. The things that I found were useful for me. Okay, let's come to grade up first. I mean, the name is changed now. It's I think Byju's Prep. I'll just write it down. It's Byju's Prep now. Oh, I don't know the spelling. This perhaps, right? So I think this is a very good source of studying. I'll tell you what I did. I mean, this will come later, this will come first. This sir's class was the first thing I ever did for paper one because I wanted a general overview of paper one, right? So you have marathons by sir, and he will tell you about teaching, research, communication, environment, and higher education, all of that. So what I did was that I first saw all his videos in I think one day I took, and I just saw all the videos, all the marathon videos, not all the videos, marathon videos, which are like I think five or six. I did not watch it for I don't know if it's there also or not, but I did not watch it for maths. But other than that, I watched all of them, and that gave me an idea of how and what I can expect in this paper. So this was an overview. An overview is important so that you have a basic idea. Because if you do not have a basic idea, it's very difficult to guess. So you cannot know everything in detail, but you have to know everything, everything in its like upper say. But detail will go to that also. But the first thing that you have to do is go through his classes. It will take you, if you study very sincerely, it will take you less than a day. And maybe Indian logic would take some time, but other than that, it will take you less than a day. Go through it and just be done with this first. Once you're done with this, once you revise and once you learn whatever he's told you in his classes, learn, है ना, revise नहीं मतलब proper, you should learn it within a period of like total 2 days में जितना भी उन्होंने कराया ये किया जा सकता है. But given the fact that you also have to study your subject, maybe for a day or two you can let your subject be and you can just completely focus on paper one. इस इनके लिए उसके बाद क्या होगा ना, जब आपका एक बेस बन जाएगा ना, उसके बाद you don't have to study so much every day. So it's like 1 2 days you'll have to study. You'll give good amount of time to paper one, give like 7 8 hours, and day two, or then you will reduce it to maybe 1 hour 30 minutes, whatever you want to. But initially the base has to be made, na, so that you know, and you have to memorize all of it. One day you see the videos, the second day you memorize all of it. You are not going to move ahead if you've not learned it. It's no use. Trust me, just by seeing his classes you can answer around I think out of 50 you will be able to answer around 20 questions easily, and just one day का काम है ना, ज़्यादा तो है नहीं. 20 questions you will be able to answer. अच्छा, 50 क्वेश्चन में ना 10 हमेशा ऐसे आएंगे जिसकी कोई प्रिपरेशन नहीं की जा सकती. यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर इट. यू विल हैव टू like think critically, guess, eliminate whatever there and then. You cannot really prepare for it. I mean, questions like this time I had uh,
I don't know, disk defragmenter from ICT. I mean, I'm pathetic at ICT, yeah, but disk defragmenter had come, and I was like, what is this? And I mean, I got that right still because the options were kind of leading you to the right answer. I mean, it's not always about you knowing stuff. Had it been, then I mean, things would have been different. I have told you a lot of times, it's a skill. It's not a test of your knowledge, it's a test of your skill. You'll have to develop that skill. I will come to that too someday. But for now, first thing you have to do this. Once you're done with this in period of 2 days, then you go to this. I also followed Sir Talveer Singh Sir because I think I watched his old videos like 3 years ago or 2 years ago. Wale videos I watched, I found them very useful. So these two were my basic things, but I would recommend that you first go through Mohit Sharma Sir, and then if you have the time, you can go through Talveer Singh Sir too. Both of them are very very good. The thing is that Mohit Sharma sir's classes are marathon, so you have a lot of content covered in single classes. I'm not sure if that exists for Talveer sir's also. If that does, you can go for him too. So I did this. I went with Sir Mohit Sharma sir, and then I started, because now I had an idea, right? I had a basic idea of all the syllabus. Now I went to Byju's Prep. At my time, it used to be Grade Up. So what I would do is every day when these classes would happen, I followed Gulshan Akhtar ma'am and Toshiba Shukla ma'am. Both of them really good teachers. I think, I mean, the coverage is very, very good. Gulshan Akhtar ma'am does not go an inch beyond the syllabus. She is going to stick so well to the syllabus. I really think you should follow her for teaching research and communication. You know, the videos that they post, maybe I'm not sure what's going on right now, but at my in my when I was preparing, every day, every, I mean, 2 3 days a week, there would be videos of questions they would discuss, sometimes teaching research. That would give me a good this thing practice. I would only solve, because teaching research communication में यार कोई मतलब नहीं बनता कि आप word to word कोई book पढ़े, क्योंकि इट्स कॉमन सेंस बेस, राइट? आपको यू ओनली हैव टू नो सम पर्टिकुलर टर्म्स. For example, I'll tell you. Um, like for example, I'm solving a question regarding which of the following is an effective teaching behavior. I don't have to read about it in order to answer it, right? I don't know if you're getting what I'm saying, but जिस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको पढ़ के टाइम मत वेस्ट करो. टाइम की बहुत कमी है, मैं उसमें आगे बताऊँगी कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपके पास कितना टाइम है. पर टाइम की कमी है, तो जहाँ पे जितना अवॉइड कर सकते हो उसको अवॉइड करो. अब नहीं ठीक है, बाद में आपके पास टाइम बच गया तो टीचिंग की डेफिनेशन भी पढ़ लेना. क्वेश्चंस आते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि टीचिंग की डेफिनेशन का जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आंसर करना मुश्किल नहीं होता. दैट्स पर्सनली माई व्यू. सो आई माइट बी रॉन्ग, बट दैट्स व्हाट आई थिंक. तो ईजी क्वेश्चंस पहले, यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस टू नो व्हाट यू कैन आंसर एंड व्हाट यू कांट. उसके बाद जो आंसर नहीं हो रहा है ना, वो कॉन्सेप्ट पढ़ना है. और वो कॉन्सेप्ट आप चाहो तो कहीं कहीं से भी पढ़ सकते हैं. जब जैसे ग्रेड अप में भी ना, once they will tell you about, like they'll give you a question. If you answer it right, very good. If you don't answer, they'll tell you, give you an explanation, right? उस explanation को आप screenshot कर लो, आप नोट्स बना लो, जो करना है करो. टाइम की देख लेना अवेलेबिलिटी, उस हिसाब से. अल्टीमेटली दिमाग में कैप्चर होना चाहिए यार. फ़ोन में है, नोटबुक में है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो दिमाग में जितना जल्दी कैप्चर हो जाए उतना बेटर है. तो ये करना है आपने, जब आप ग्रेड अप या बायजूस प्रेप उन पे देखेंगे क्वेश्चंस. जैसे फॉर एग्जांपल टीचिंग जब मैं करी थी, मुझे 2-3 चीज़ें थी जो नहीं, मतलब आई सॉल्व्ड क्वेश्चंस, आई वाज़ ट्राइंग टू सॉल्व क्वेश्चन, आई वाज़ एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस. देयर वर क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर टर्म कॉल्ड पॉजिटिविज्म. है ना? आई हैड नो आइडिया एंड आई वाज आंसरिंग द क्वेश्चंस रॉन्ग. देन आई रेड अबाउट द कॉन्सेप्ट कि अच्छा पॉजिटिविज्म ये होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म. वन लाइन का कॉन्सेप्ट है यार, कोई पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है. यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक्स सो दैट यू कैन आंसर इन द एग्जाम, है ना? So you should understand what positivism is. Then there was this, what is it? I'm forgetting the name exactly. Something like norm referenced, and the other one I don't remember. मतलब percentile और percentage वाला जो system होता है, that has a some name ना, norm referenced और एक और. तो वो चीज़ मेरे लिए नई थी. So I just picked it up and memorized it. That's it. Teaching aptitude में गिन के 5-6 terms हैं जो आपको पता होनी चाहिए. और कुछ मतलब ये टर्म्स भी हैं,
और कुछ ना वो है, आई थिंक दैट ऑल्सो कम्स इन दिस ओनली, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स। अगर आपने बचपन में मतलब करा होगा ये सब, तो आपको पता होगा कि वर्कशॉप क्या होती है, सेमिनार क्या होती है। नहीं भी पता है, जल्दी से देखो, खत्म करो एक-एक लाइन में। एक लाइन से ज़्यादा इनका ऊपर नोट्स या आपका मेमोरी नहीं होनी चाहिए। आप कितना कुछ स्टोर करोगे ना अपनी मेमोरी में, दैट्स इट, यू विल बी एबल टू सॉल्व योर क्वेश्चंस विद दिस, ट्रस्ट मी विद दैट। यू कैन, जस्ट वन लाइन का आपको पता सब कुछ होना चाहिए, डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बुक में स्पेशली आई थिंक जो भी चीज़ें टेबल्स में होती हैं ना, मतलब हाइलाइटेड होती हैं या बोल्ड में लिखा हुआ है, दोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गो थ्रू देम। बिकॉज़ सी, just think of it like that. I'm not sure if this is true or not, but just imagine, maybe the examiner picks up this book, KVS Madan, because this is the most popular book, है ना? That's what I feel. I'm not sure though. I don't have any data to support my argument, but I think this is the most famous book. Everybody studies this. Everybody recommends this, right? मतलब mostly, I shouldn't be using the word everybody, mostly. So I think गो थ्रू द टेबल्स, क्योंकि जब एग्जामिनर मान लीजिए बुक खोलते हैं, उनको सबसे पहले ना वो हाईलाइटेड चीज़ें दिखेंगी। ही इज नॉट गोइंग टू रीड एंड सिट डाउन एंड रीड एवरीथिंग दैट्स रिटन इन द बुक। ही इज गोइंग टू सी द हाईलाइटेड स्टफ। हाईलाइटेड स्टफ itself is important, and there is a chance if the examiner uses the book to make questions, he is going to use put it from the highlighted portions. तो highlighted portions पहले पढ़ने हैं, ठीक है? ये नहीं करना है कि फर्स्ट पेज से पढ़ना शुरू किया, एक-एक वर्ड, एक-एक लाइन, नहीं, इतना टाइम ही नहीं है। मैं आपको बताऊँगी आगे आपके पास कितना टाइम है करने के लिए। तो उस हिसाब से आपने डिवाइड करना है, अपना टाइम देखना है, उस हिसाब से प्रायोरिटी रखनी है, क्योंकि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। आई अंडरस्टैंड, ये फीलिंग हमेशा रहती है कि यार इसमें से ये आ गया तो, या वो आ गया तो। अगर ये या वो आ गया ना, तो वो किसी से नहीं आने वाला, किसी को नहीं आने वाला, क्योंकि जितना टाइम आपके पास है ना, लगभग उतना ही सबके पास होता है। और अगर आप ऐसा सोचें कि हाँ, कोई 2 साल से पढ़ रहा है, 3 साल से पढ़ रहा है, एक लेवल के बाद ना आप अपना नॉलेज बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते, नहीं तो आप पिछला भूल जाते हैं। मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा फ़र्क होगा, पर वो फ़र्क बहुत कम होता है, जितना हम सोचते हैं उतना नहीं होता है। एनीवे, तो ये उसके बाद इफ़ यू डन विद ऑल ऑफ दिस एंड आर यू स्टिल लेफ्ट विद टाइम, मतलब अब टाइम और भी बच गया, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर नवदीप कौर मैम, बिकॉज़ हर कवरेज ऑफ थिंग्स इज़ रियली गुड। मतलब शी विल टीच यू लिटरली एवरीथिंग। इनके ऑनलाइन वीडियोज़ इन्हीं के चैनल पे, आई थिंक नव क्लासेस नाम है चैनल का। यू विल गेट गुड इन्फॉर्मेशन हर टॉपिक पे। तो पर मैं सजेस्ट करूँगी कि इनके पास आप तभी जाएँ अगर आपके पास काफ़ी मतलब आप, अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे लेवल पे हैं ना, यू वांट टू टेक योर प्रिपरेशन टू अ डिफरेंट लेवल, मतलब जेआरएफ टाइप, इफ यू वांट, लाइक इफ यू एमिंग फॉर जेआरएफ, देन यू शुड गो फॉर हर चैनल। बट डू दिस फर्स्ट। अगर आपने ये पहले नहीं किया ना, मतलब आई एम श्योर शी ऑल्सो मस्ट बी टीचिंग द बेसिक्स, पर मैंने बेसिक्स यहाँ से किए थे, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। सो आई थिंक दिस शुड बी फर्स्ट, or this, and then you have to come to this, and then finally to this, right? All right. कितना समय दें? दिस शुडंट इवन बी अ क्वेश्चन। पीपल डू आस्क मी कितना टाइम देना होता है पेपर वन को, कितना नहीं देना होता है, या मैंने तो 20 मिनट ही दिए हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सभी 20 मिनट देंगे। यू हैव टू सी फॉर योर, हो सकता है आपको 10 ही मिनट लगे, मुझे क्या पता। आई कैन जस्ट से कि एवरेज, मतलब एक जनरल स्टेटमेंट दे सकती हूँ कि जितना टाइम आप पेपर टू को दे रहे हैं ना, उतना मतलब उसका 30% या 40%, 40 तो नहीं, 40 तो ज़्यादा हो जाएगा, 25-30% आपको पेपर वन को देना है। बिकॉज पेपर वन इज़ गोइंग टू गेट यू थ्रू। पेपर वन में स्कोर करना इज़ कंपैरेटिवली वेरी वेरी ईजी, कि डिस्पाइट हाउ मच यू स्टडी इन पेपर टू, मतलब इंग्लिश तो यार इज़ सो वास्ट। Despite how much you study, the questions are going to be either very easy that everybody would know about, or very tough that nobody would be knowing about. तो ये जो बीच के मीडियम वाले क्वेश्चंस हैं ना, ये काफ़ी कम रहते हैं मेरे हिसाब से। तो अल्टीमेटली हम 50 तक पहुंच पाते हैं बहुत मुश्किल से। आप बाकी सब्जेक्ट्स में देखोगे तो दे गेट गुड परसेंटेजेस, मतलब बाकी, मतलब कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अच्छी परसेंटेजेस आती हैं, पर इंग्लिश में आप ये रिस्क नहीं ले सकते। आप इंग्लिश को नहीं सोच सकते कि आप इंग्लिश में स्कोर कर सकते हो बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत डाइवर्स पूछा जाता है, बहुत डाइवर्स। डाइवर्स कहाँ नहीं पूछा जा रहा है? पेपर वन में। देयर यू हैव टू प्रैक्टिस। अब यू नो, एज आई सेड कि 5-10 क्वेश्चंस हमेशा ऐसे होंगे जो जिनके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की जा सकती। कई बार ज़्यादा होते हैं, कई बार कम होते हैं। लाइक इस बार के टाइम में तो काफ़ी क्वेश्चंस थे यार, जिसका देयर वाज नो प्रिपरेशन दैट यू कुड हैव पॉसिबली डन फॉर इट। लाइक फॉर एग्जांपल, आई थिंक आई टोल्ड यू, एक क्वेश्चन था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द एनडीएमए, है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नाउ यू
यू कांट प्रिपेयर दिस। आई डोंट थिंक यू वुड नो इट अगर आपने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है या फिर आप न्यूज़पेपर फॉलो नहीं करते हैं। यू कांट। बट डज दैट मीन कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें? अगर 2 महीने बाद एग्जाम है तो क्या आपको न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए? नहीं। दैट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। आपको इनपुट आउटपुट देखना है, कितने इनपुट पे कितना आउटपुट आ रहा है। यू हैव टू डेवलप द स्किल ऑफ लेटिंग गो एंड ऑफ हैविंग कॉन्फिडेंस। हमें में कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, तब हमें लगता है कि यार ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। अल्टीमेटली आप करके देखो। अगर आपको याद हो जा रहा है, पहले तभी तो मैंने कहा पहले आप ये याद करो। जब तक आप ये याद नहीं कर सकते जो उन्होंने पढ़ाया है, देयर इज नो पॉइंट गोइंग इन द डेप्थ ऑफ इट, नो पॉइंट। क्योंकि अगर आप बेसिक नहीं आएगा, अगर आप 20 आउट ऑफ 50 ही नहीं कर पाएंगे तो बाकी जो 10 10 क्वेश्चन जहाँ से आने होंगे उसका तो कोई मतलब ही नहीं बन जाता यार। अगर आप यही नहीं स्कोर कर पा रहे हो। सो फर्स्ट अपना जो बेसिक है ना उसको इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि कुछ भी पूछ लो आपसे, है ना। ओके। सो ओके, टाइमिंग आई थिंक मेरे हिसाब से जो आई थिंक एक इंसान को पढ़ना चाहिए, अगर आप दिन में मान लीजिए 8 आवर्स पढ़ रहे हैं, 8 आवर्स इज़ क्वाइट अ गुड डील। हाँ, काफ़ी बड़ी बात होती है 8 घंटे पढ़ना, बड़ा डाउन प्ले किया जाता है पढ़ाई के नंबर ऑफ आवर्स को, पर मुझे ऐसा लगता है कि 8 आवर्स बहुत होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है, चाहे तो टाइम वो लगा लो, स्टॉप वॉच लगा लो, आपको खुद पता चल जाएगा आप कितना पढ़ रहे हो। जब नहीं पढ़ रहे हो स्टॉप वॉच को बंद कर दो। कई बार वी डू समथिंग एल्स और वी जस्ट गेट स्टक समवेयर और हमें आइडिया नहीं रहता कि हमने कितना टाइम कहाँ लगा दिया। आप स्टॉप वॉच यूज़ करो, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितने घंटे पढ़ते हो। आई मीन देयर वाज़ अ टाइम आई यूज्ड टू थिंक कि आई एम स्टडिंग फॉर अराउंड 11 आवर्स अ डे। नेट के टाइम पे नहीं, किसी और मतलब कुछ और किसी कोई और तैयारी कर रही थी मैं उस टाइम। तो अल्टीमेटली आई रियलाइज्ड आई वाज स्टडिंग फॉर लाइक 6.5 आवर्स एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि हमें लगता है कि हम ज़्यादा पढ़ते हैं, पर 6 7 8 घंटे बहुत होते हैं, बहुत बहुत होते हैं। आप करके देख लेना। तो ऑलराइट, so 8 hours, say if you're studying for 8 hours, I think 2 hours should go for paper one, 2 hours। इसमें भी ऐसे नहीं कि 2 घंटे पढ़ रहे हैं सिर्फ टीचिंग ही हुआ है या बेसिक सा कुछ किया है, नहीं। उसका टारगेट बनाना है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। तो ओके, सो नाउ द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ईयर्स, ले लेते हैं जून में होगा, फिलहाल यही मान के चलते हैं 1 जून को। हमारे लिए तो बेहतर ही है ना अगर हम जल्दी माने और लेट हो जाए। 1 जून को मान के चलते हैं। या अगर आपको, हाँ, 1 जून को मान लीजिए एग्ज़ाम है। आपके पास 2 तरीके हैं। पहला कि आप सिर्फ़ अप्रैल में अपना पेपर 1 ख़त्म कर दें और पेपर 1 का रिविज़न रखें पूरा 1 महीने में। मैं आपकी जगह होती मैं ये वाला करती। रादर देन स्टडिंग फॉर पूरा इतना मतलब 2 महीने में कवर करने की जगह मैं 1 महीने में कवर करती, उसके बाद रिवाइज़ करती। क्योंकि रिविज़न का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपका कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आपने 100 किताबें पढ़ी है, अगर आपको पेपर में कुछ याद नहीं आ रहा। और याद तभी आएगा जब कम पढ़ा होगा लेकिन बार-बार पढ़ा होगा। इंसान है यार हम, इंसानों वाला दिमाग है, मशीन्स नहीं है। हम ज़्यादा एक लेवल तक ही पढ़ सकते हैं, उस लेवल जितना पढ़ सकते हैं उसको इम्प्रूव करो। ज़्यादा बार पढ़ो ताकि वो आपसे चाहे चलते-फिरते, सोते, कभी भी कोई भी पूछ ले आपको पता होना चाहिए, है ना? ठीक है। सो 25 डेज़ में मैं करूँगी, मैंने भी 31 डेज़ का भी प्लान बना रखा है आगे, पर 25 डेज़ में कोशिश करनी है आपने कि 25 डेज़ में आपका कंप्लीट होना चाहिए। आई विल बी पोस्टिंग दिस वीडियो टुडे ऑन 5th ऑफ अप्रैल। 6th ऑफ अप्रैल आई मतलब अगर आपको करना है ये मेरे साथ तो 6th ऑफ अप्रैल आप शुरू कर सकते हैं। और अगर नहीं भी करना है तो आप डेट्स को आगे कर लेना, अपना टाइम टेबल बनाना, जो-जो मैंने लिखा है उसमें बस 1-1 दिन प्लस कर लेना या 2 दिन प्लस कर लेना, है ना? थोड़ा-सा वो कर लेना। चलो, प्लान करते हैं, लेट्स सी। थोड़ा-सा वो है ये कि ओह! इसको क्या हुआ? ओके, सो प्लान करते हैं। मान के लीजिए 25 दिन है, अगर 6 अप्रैल को आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास 25 डेज़ हैं बाय द एंड ऑफ अप्रैल, राइट? हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर? 10 यूनिट्स रख लेते हैं, मतलब रख क्या लेते हैं, है ही 10 यूनिट्स, बट ओके। सो यू हैव 25 डेज़ अपॉन 10 यूनिट्स, रफली यू हैव 2.5 डेज़ फॉर 1 यूनिट। ये बात समझ आई? अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब कम्युनिकेशन को भी 2.5 डेज़ दे रहे हैं हम पूरे कि हाँ जी, अच्छा 2.5 डेज़ में सिर्फ यही नहीं है कि 2.5 डेज़ में पूरा पेपर 1 ही पढ़ना है। 2.5 डेज़ में करना है, अब उसमें पेपर 2 भी है, पेपर 1 भी है, फिर आवर्स आप डिवाइड करेंगे। अगर आप 2.5 डेज़ में मान लीजिए एक टॉपिक कर रहे हैं, 2 घंटे की मैंने बात की है एक दिन में, सो यू गोना डू हाउ मच? अराउंड 5 आवर्स यू विल हैव फॉर 1 यूनिट। यही टाइम है, आपके पास 5 घंटे हैं।
पेपर 1 करने के लिए 1 यूनिट करने के लिए 2.5 डेज़ में टोटल 5 घंटे हैं। अब आप खुद देख लीजिएगा 5 घंटे कहाँ निकालेंगे और 1 यूनिट 5 घंटे में ख़त्म होनी चाहिए। अब आप खुद सोचो कि इसमें आप क्या-क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। अगर आप अब शुरू करोगे स्टार्टिंग से एक-एक चीज़ पढ़ोगे, नहीं वो नहीं करना है। जितना इम्पोर्टेंट स्टफ़ कवर हो सकता है 5 घंटों में वो करना है। इनफैक्ट इसमें भी मैं अगर मैं आपकी जगह होंगी तो मैं ऐसा करूँगी 4 आवर्स आई विल स्टडी, 1 आवर आई विल कीप एक्सक्लूसिवली फॉर रिविजन, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं 4 घंटे कुछ पढ़ा और रिवाइज़ नहीं किया। ये करूँगी तो 4 घंटे में आई विल बी ट्राइंग टू कंप्लीट एवरीथिंग, है ना? अच्छा, अगर कम्युनिकेशन को 2.5 डेज़ नहीं देने हैं, जो मैं कह रही हूँ नहीं देने हैं, तो कहाँ देने हैं? यहाँ पे मान लीजिए 0.5 ही देने हैं, ये लिखा है मैंने यहाँ पे। तो जो बाकी के 2 दिन बच गए ना यहाँ पे, ये मैं किसी डिफ़िकल्ट टॉपिक में डाल दूँगी। क्योंकि इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली, मतलब बड़ा सही नहीं है इफ़ यू गिव 2.5 डेज़ टू कम्युनिकेशन ऑल्सो एंड 2.5 डेज़ टू इंडियन लॉजिक ऑल्सो। इंडियन लॉजिक इज़ डिफ़िकल्ट, इट विल नीड टाइम, लेकिन टाइम तो उतना ही है, टाइम तो कम है ना, तो हम यहाँ से टाइम निकालेंगे और यहाँ डाल देंगे कि यहाँ हम काम करेंगे। अ, ओह! ये तो दिख ही नहीं रहा, आई एम सो सॉरी। हाँ, तो हम यहाँ से टाइम निकालेंगे 2.5 डेज़ का। 0.5 हमने कम्युनिकेशन में दे दिया है, बाकी जो 2 दिन बच गए कम्युनिकेशन के वो हम देंगे इंडियन लॉजिक को, क्योंकि इंडियन लॉजिक इज़ इम्पोर्टेंट, इट्स डिफ़िकल्ट और हमारे टाइम में तो काफ़ी क्वेश्चंस आए थे यार। तो इंडियन लॉजिक करना है ना? मतलब तो इंडियन लॉजिक में वैसे 2.5 डेज़ होंगे, लेकिन हमने 2 डेज़ यहाँ से भी निकाल दी तो हमारे पास टोटल 4.5 डेज़ हो गए, व्हिच इज़ अ गुड डील ऑफ टाइम। तो ऐसे प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन को भी उतना ही टाइम दे रहे हैं, इंडियन लॉजिक को भी उतना ही टाइम दे रहे हैं, क्योंकि टाइम तो उतना ही है ना, बराबर ही टाइम है। अब वो आपकी, नाउ दैट इज़ अ स्किल, अब आपको देखना है कि आपके पास कितना टाइम है कहाँ देने के लिए। जब मैंने इनिशियली प्लान किया था ना, तो क्योंकि उस टाइम मेरे पास 2 ही महीने थे, जिन लोगों ने मुझे पहले से फ़ॉलो किया उनको पता होगा कि आई वाज़ फर्स्ट एमिंग 2 महीने के अंदर-अंदर, आई वाज़ ओवर एम्बिशियस, है ना? 2 महीने के अंदर-अंदर आई वाज़ ट्राइंग टू कंप्लीट। और उस टाइम पे मैंने क्या अम, उस टाइम पे मैंने क्या वो बनाया था कि आई एम सो सॉरी यार। या सो उस टाइम पे आई डिसाइडेड कि मैं टीचिंग रिसर्च कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं करूँगी, आई वुड लीव इट आउट, आई वुड रादर डू इन्वायरमेंट रिसर्च, सॉरी इन्वायरमेंट आपका हायर एजुकेशन एंड इंडियन लॉजिक एंड ऑल ऑफ दैट। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने जब पेपर्स देखे थे मुझे रियलाइज़ हुआ था कि टीचिंग रिसर्च और कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो मैं शायद बिना पढ़े भी कर लूँगी, लेकिन इन्वायरमेंट और इंडियन लॉजिक मेरा कुछ नहीं होने वाला अगर मैं नहीं पढ़ूंगी। सो रादर दैन स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट, जो कि जनरल टेंडेंसी रहती है, मेरे को भी बहुत मज़ा आता है पहले पेज से बुक को पढ़ने का कि बस इसका तो एक एक शब्द पढ़ देना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए बाद में कि आपने अनइम्पॉर्टेंट पढ़ लिया और इम्पॉर्टेंट रह गया, क्योंकि ऐसा होता है, टाइम टेबल आप बनाएंगे लेकिन वो बैलेंस नहीं रहेगा, ऐसा होता है। पर हमें स्मार्ट रहना है, हमें प्रैक्टिकली सोचना है, हमें सारा इम्पॉर्टेंट चीज़ें पहले आनी चाहिए, हमें अपना सिक्योर करना है। अगर 50 क्वेश्चंस हैं ना, हमें उसमें से 25 सिक्योर करने हैं कि भाई इतने तो आने ही चाहिए, इंपॉर्टेंट में से ही आएंगे इतने। फिर थोड़ा सा अनइम्पॉर्टेंट में से अराउंड 10 आ जाएंगे, फिर थोड़े 5 और डिफिकल्ट होंगे, फिर कुछ और होंगे, फिर वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, है ना, यहाँ से आगे तो। पर हमें पहले ये सिक्योर करना है ना? ये चीज़ सिक्योर करनी है पहले और ये हो जाएगा। आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें करनी है। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा इम्पॉर्टेंट? फॉलो दिस चैनल। आई रियली थिंक यू शुड फॉलो दिस, क्योंकि इनका ना वो बहुत अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड दे विल नॉट टेल यू समथिंग जो नहीं आने वाला है एग्जाम में, स्पेशली फॉर टीचिंग रिसर्च एंड कम्युनिकेशन। तो आई थिंक यू शुड जस्ट फॉलो दिस और क्वेश्चन सॉल्व करो, जो नहीं हो रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट्स याद करो क्या है, और एक टाइम की मतलब अराउंड कुछ दिनों में ही आपको लगने लग जाएगा कि आपको अब बहुत आता है, यू विल फील पॉजिटिव कि टोटल में 10-15 चीज़ें हैं, मतलब बस वही है, और उसके अलावा कुछ नहीं है, उसके अलावा कॉमन सेंस है जो एग्जाम में चेक होगी, है ना? दैट्स इट। अब आते हैं हम टाइम टेबल पे। आई हैव मेड दिस बिकॉज़ अ फ्रेंड, या इसको, हाँ, बिकॉज़ अ फ्रेंड काइंड ऑफ आस्क्ड मी टू, आई मीन शी डिड नॉट आस्क मी बट आई काइंड ऑफ सेड कि आई विल हेल्प यू विद द टाइम टेबल, तो मैंने सोचा वीडियो ही बना देते हैं, है ना? तो ओके, ये 1 मंथ वाले हैं जिनको 1 मंथ में कंप्लीट करना है पेपर 1, और ये 2 मंथ्स वाले हैं जिनको 2 मंथ्स में कंप्लीट करना है, ठीक है? एक चीज़ मैं बता देती हूँ आपको कि ये वाला आई थिंक यू शुड फॉलो, है ना? अगर आपके पास टाइम बच जाता है उसके बाद अपने रिविजन्स पे काफ़ी फोकस करना है।
ट्राई टू कंप्लीट इट इन 1 मंथ। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे हमारा तो बहुत ही कम कवर होगा, डू इट, जस्ट डू इट। क्योंकि more than covering things in depth, what is important is to have surface level knowledge of everything, because ultimately it is guessing in the paper में कोई सीधा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। लाइक दिस टाइम दे आस्क्ड कम्युनिकेशन में कलर, कलर इज द सिंबल ऑफ व्हाट इन कम्युनिकेशन। ठीक है, नहीं मतलब नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, कलर इज अ कम्युनिकेटिंग थिंग विच डिराइव्स फ्रॉम समथिंग, लाइक कि कलर जो होता है वो कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। और ये कहाँ से इमिनेट होता है, इसका सोर्स क्या है, द कलर, इसका आई थिंक कलर ऑफ क्लोथ्स था, आई एम नॉट श्योर इफ कलर ऑफ क्लोथ्स था कि नहीं, पर कलर तो पक्का था। तो पेपर में अब इसमें क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे इसको कहीं पे कम्युनिकेशन में, जब आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, वहीं पे कॉमन सेंस से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा दिमाग खुला रखना है बस पेपर में। इसका कल्चर आंसर था, है ना। तो अम, मतलब पेपर में अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप बुक्स पढ़ोगे और इसमें से आ जाएगा, नहीं आएगा। इसमें से सिर्फ आपको एक बेसिक सा तैयार करना है कि आपको वो आना चाहिए जो सबको आता है ना, ताकि आप वहाँ नहीं रह जाओ। उसके अलावा पेपर में तो दिमाग ही लगेगा, और दिमाग से ही वो पेपर वन, दिमाग लगाना पड़ेगा और उसी से आंसर्स आएंगे। ठीक है, इस बार बेसिस स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का बहुत टफ क्वेश्चन था मेरे शिफ्ट में, उसको मुझे करते करते लग गए कम से कम 5-6 मिनट, इट टुक माई 5-6 मिनट्स अवे। तो इट वॉज मतलब आई डोंट, एक तो मेरे पास ना पेपर नहीं है अपना, बट तो तो मतलब आपको सिर्फ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पता होना चाहिए क्या है। पेपर में तो दिमाग खुद ही लगाना पड़ेगा, वहाँ तो वो सॉल्व करके होगा, वहाँ पे क्रिटिकली सोचना पड़ता है। इस बार पेपर वन से हमारे शिफ्ट का ना ठीक ठाक डिफिकल्ट था यार, इट इन्वॉल्व्ड अ लॉट ऑफ थिंकिंग। और पेपर में पता चल गया था कि इस बार पेपर टफ है, ठीक ठाक टफ है, क्योंकि I should have solved paper one in around like 35-40 minutes. That's my speed for paper one, क्योंकि मैं पहले एक बार पेपर सॉल्व करके गई थी मैं, कि मेरे को कितना टाइम लगना चाहिए। एंड इट टुक मी 1 hour 3 minutes पेपर वन में। वो भी मैंने अभी वो नहीं सॉल्व की थी, कॉम्प्रीहेंशन। आई डिड नॉट सॉल्व दैट। और उसके में तो पता नहीं क्या क्या हुआ फिर, हाय। एनीवे, तो बता क्यों रही थी ये सब, ओ आई गॉट सो डिस्ट्रैक्टेड, आई एम सॉरी। तो so paper one is going to be tough. It can be easy too if you're lucky. Actually lucky नहीं है. You are lucky if paper one is difficult. क्योंकि you know then it will, the percentage जो है ना वो सबकी गिरेगी, मतलब सबके नंबर कम आएंगे। तो आई मीन वो मुझे ऐसा लगता है, मतलब शायद मे बी इट्स ईजी फॉर मी, क्योंकि मैं सच में आई वॉज दिस थिंग कि अगर पेपर वन डिफिकल्ट आएगा तो आई विल हैव एन एज, क्योंकि ईजी तो सब कर लेंगे। पेपर वन आई वॉज गुड एट पेपर वन, तो मुझे था कि अगर पेपर वन टफ आता है तो आई विल हैव एन एज एंड आई विल बी एबल टू स्कोर बेटर देन आई कैन। क्योंकि ईज़ी तो प्रिपेयर मतलब होएगा, सब करेंगे, जितना टफ होता जाएगा उतना आपकी मेहनत ना फिर वहाँ पे दिखती है। अगर बहुत ही टफ आ जाए फिर तो मेहनती वाला भी गिरता है, फिर वो सब कुछ वापस बराबर आ जाता है। पर एक मीडियम टफ लेवल का पेपर आए ना, तो उसमें जिसने मेहनत की होती है ना ठीक-ठाक, जिसको ठीक नॉलेज होती है उस चीज़ की, वो काफ़ी प्रॉस्पर करता है। एनीवे, तो आपने पेपर वन अच्छे से तैयार करना है। पेपर वन आपका मतलब पेपर वन में एम फॉर 40 क्वेश्चंस यार, 40 और 50, मेरे खुद 34 आए हैं, मैं क्या ही बोल रही हूँ। बट 40 क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब व्हेन आई सॉ द पेपर ना आई फेल्ट कि 40 क्वेश्चंस इजीली हो सकते थे। पर वो पेपर में प्रेशर भी होता है, 100 चीज़ें होती हैं, बोलना आसान है, पर फिर भी कोशिश तो कर सकते हैं ना हम 40 प्लस क्वेश्चंस करने की। अगर आप यहाँ 40 कर लेते हैं ना, यू विल गेट हाउ मेनी, 80% हो जाएगा आपका इधर ही। फिर अल्टीमेटली तो यहाँ इस इतने अराउंड नंबर लेने होते हैं, है ना। तो आप सोचो आपके पास कितना गैप मिल जाएगा आपको पेपर टू में, इंग्लिश में कितना आपके पास मार्जिन है कम क्वेश्चन सही करने का, अगर आप पेपर वन में अच्छा परफॉर्म करते हैं। और लोगों के आते हैं 80%, मतलब 40 क्वेश्चन प्लस लोग ठीक करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द टाइम टेबल दैट परहैप्स आई वुड हैव फॉलोड अगर मैंने देना होता अभी, और अगर मैंने कल से पढ़ाई शुरू कर रही होती मैं। टीचिंग, रिसर्च, फिर एक दिन रिवीजन ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च। ये 2 दिन ये हो गए, 2 दिन ये हो गए, 0.5 हो गए, 2.5 डेज हो गए। अब इसमें आवर्स आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे अपने टाइम टेबल जब बनाएंगे डेली। तो ये 2 क्वेश्चंस मैथ्स के मैं आपके लिए लिख रही हूँ, ताकि क्योंकि मैथ्स एक दिन में नहीं आएगा।
आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, दैट इज़ व्हेन यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, है ना? 2 कोई लगा, आपको 2 कम लग रहे हैं, आप 5 कर लो। आपने 100 करने हैं, आप 100 कर लो, पर देख लो आपके पास इतना टाइम है कि नहीं, आपका टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। फिर आपके पास टाइम है तो आप जितना मर्ज़ी पढ़ो, है ना? तो पर वही है कि 20% जो सिलेबस होता है उसी में से आता है 80% ऑफ द पेपर। ये जब मैं पढ़ रही थी ना, डाउट्स तो होते हैं यार, सेल्फ डाउट बहुत आता है। तो मैं भी देखती थी, लोगों को सुनती थी, तो वो कहते थे कि हाँ 80% जो है वो 20% ऑफ द सिलेबस में से आएगा। मुझे बड़ा अनबिलीवेबल से लगता था, पर ये सही है। ये सही है, मतलब ये मुझे अनबिलीवेबल लगा जब तक मैंने एग्जाम नहीं दे दिया है। तो ट्रस्ट मी, ट्रस्ट डेस्टिनी, ट्रस्ट वट एवर, बट हैव कॉन्फिडेंस कि ठीक है, आप इंटेलिजेंट हैं, बाकी लोगों की तरह ही हैं, कोई कुछ और बहुत बड़ा नहीं करने वाला है। आपको वही करना है जो सब कर रहे होंगे, सब इंसान हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर के साथ पैदा नहीं हुआ है, जो 1 आधे 2 होंगे, उनसे हमारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। दे विल नॉट डिटरमिन द कट ऑफ। तो हमारा फ़ोकस होना चाहिए वो करना जो बाकी सब कर रहे हैं, अच्छे से, उनसे बेटर करना है वही चीज़। कि पढ़ेंगे तो सब केवीएस मैदान, देखेंगे तो सब यही यूट्यूब चैनल्स, पर वही है कि कौन कितना अच्छे से उस चीज़ को अपने उसमें टाइम टेबल में इनकलकेट कर लेता है, कौन चीज़ों को अच्छे से कर पाता है। जैसे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है टाइम टेबल, जैसे ये टाइम टेबल बना दिया है ना, कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे 6 अप्रैल को मान लीजिए कुछ हो गया, कहीं जाना पड़ गया, नहीं हुई पढ़ाई, तो आप बोलेंगे ओह हो! ये तो पूरा टाइम टेबल ही खराब हो गया, अब तो फिर से बनाना पड़ेगा। नहीं, अगर आप यहाँ 8 घंटे पढ़ रहे थे, यहाँ 14 पढ़ लो, 1 दिन की तो बात है ना, 1 दिन में तो कर पाओगे। मतलब आई डोंट रियली रिकमेंड दिस, पर अगर ऐसा हो गया है कि आप यहाँ नहीं पढ़ पाए हैं, तो यहाँ पे आपको पढ़ लेना चाहिए। इतना तो पढ़ ही लेना चाहिए, कवर कर लो। और जो भी ये टारगेट 7th अप्रैल तक का था ना, वो मतलब मान लीजिए यहाँ नहीं पढ़ पाए, ठीक है? नहीं पढ़ पाए 6th अप्रैल को, 7th को अब आपके पास टाइम बचा है। अब आपने जो यहाँ पढ़ना था वो आप पढ़ ही नहीं पाए। जस्ट शिफ्ट दिस टारगेट टू हियर एंड देन ऐड, कि दोनों चीज़ें बाय 7th अप्रैल हो जानी चाहिए। ठीक है? मान लीजिए यहाँ नहीं पढ़ पाए, तो सब कुछ 8th अप्रैल तक हो जाना चाहिए, लेकिन फिर स्टिक करना है, ऐसे नहीं कि आगे तक होता ही जाए कि हाँ, अब 9th अप्रैल को कर लेंगे हम तो, नहीं। दिस शुड हैपन वन्स इन अ व्हाइल, दैट टू, क्योंकि बहुत कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस थे, नहीं तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है? निकालो टाइम। कई बार क्या होता है, मान लीजिए 6 अप्रैल को पढ़ रहे हैं, आपको पता है 11th को मान लीजिए कुछ आपका कुछ फंक्शन आ गया, आपको कहीं जाना पड़ रहा है। आपको पता है ना 6 अप्रैल को कि जाना पड़ रहा है, तो 6 अप्रैल को ही 11th अप्रैल का जो भी काम है डिवाइड कर लो बाकी दिनों में, कि ठीक है इतना ये मैंने पढ़ना था, तो मैं ये बाकी दिनों में डिवाइड कर लेता हूँ या लेती हूँ, ताकि उस दिन मैं फ्री रह सकूँ। ये करना होता है, ऐसा नहीं कि अब तो टाइम टेबल खराब हो गया फिर से शुरू कर रहे हैं, नहीं, वो कभी हेल्प नहीं करेगा। फोकस ऑन एडजस्टिंग, ऑन मेकिंग थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइम टेबल, थोड़ा आवर्स फ्लेक्सिबल कर लो जिस दिन अगर आपको, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू हैव टू मेक अप फॉर इट ना, यू हैव टू मेक अप फॉर द टाइम वेस्टेड। ठीक है? ओके, सो ये हो गया। फिर इंडियन लॉजिक, इंडियन लॉजिक, इंडियन लॉजिक 4 दिन दे दिए, क्योंकि मैंने कम्युनिकेशन में 1 ही दिन दिया है यहाँ पे, है ना? तो ऐसे आपको करना है। इन्वायरमेंट को यहाँ 2 दिन है, हायर एजुकेशन को 2 दिन है। आप देख लो ना, 2 दिन का क्या मतलब है, 4 घंटे, 4 घंटे में इन्वायरमेंट खत्म करना है। अनबिलीवेबल लग रहा होगा, तो सब कुछ नहीं पढ़ना है ना फिर। जितना इन 2 घंटे में हो सकता है उतना ही करना है। तब दैट इज़ व्हेन यू विल रियलाइज़ कि इम्पोर्टेंट स्टफ पहले करना है और अनइम्पोर्टेंट बाद में। नहीं तो अल्टीमेटली पता है क्या होगा? अगर मान लो आप ऐसा नहीं करते, 2 दिन नहीं करते, रख दिए यहाँ पे 7 दिन है ना एनवायरनमेंट के, फिर बस एनवायरनमेंट ही होगा और पता लगे पेपर में 1 ही क्वेश्चन आया, है ना? हमें नहीं पता, पेपर बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया। पहले फिर भी थोड़े 5-5 क्वेश्चन्स आते थे। आजकल तो इट्स लाइक किसी चीज़ से 10 आ रहे हैं, किसी से 2 ही आ रहे हैं। सो वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो गया और हमें उसके साथ थोड़ा-सा अपने आप को अपना वो चेंज करना पड़ेगा सिस्टम। तो एक अब जैसे मान लीजिए 2 ही दिन एनवायरनमेंट के पास और टोटल कितना टाइम रह गया मेरे पास, 4 घंटे। अब 4 घंटे में अगर आप देखोगे कितना कुछ है यार एनवायरनमेंट में, है ना? पर क्या आता है पेपर में? आपके पॉल्यूटेंट्स आएँगे, आपकी बॉडीज़ आएँगी, आपके एक्ट्स आएँगे। यार ये काम तो हो सकता है यार 4 घंटे में। यही करना है फिर, उसके बाद छूना ही नहीं कुछ और, यही करना है। मतलब आपको ये रियलाइज़ेशन होनी चाहिए कि टाइम कम है। अगर आप 1 महीने में पेपर 1 करने की सोच रहे हैं, तो इतना ही टाइम है। देन यू हैव टू डू इट इन 4 आवर्स। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे! मेरा तो छूट जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर जैसे ये 1 महीने में हो गया ना, जैसे यहाँ पे ये 1 महीने तक, 1 महीने का प्लान है ये पूरा। उसके बाद आपके पास ये महीना भी है जिसमें आप रिवीजन करेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपको रिवीजन में सब कुछ याद है पिछले वाला, तो आप कंटेंट एनरिचमेंट कर सकते हो। तब आप और नई-नई चीज़ें पढ़ सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम बच जाएगा यहाँ पे भी रिवीजन के लिए। ठीक है? पता नहीं इफ आई एम मेकिंग सेंस और नॉट, बट ये अब जैसे ये मैंने आपको 1 महीने का बताया है ना,
यू डू इट फॉर 1 ईयर। अगर आपके पास 1 साल का टाइम है, आप 1 साल में डिवाइड करो। बता दिया ना वो कैसे करते हैं। यहाँ 25 दिन अपॉन 10 करना है, आपके पास 1 साल है, 365/10 करो, आपके पास 36 डेज है फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक, है ना, पर्टिकुलर यूनिट। तो ऐसे करना होता है डिवाइस, और ताकि आपको आपको आइडिया रहना चाहिए कि आपके पास टाइम कितना है। तब आप फिर आप इधर उधर नहीं, यू विल नॉट गो अस्ट्रे कि हाँ ये भी पढ़ रहे हैं, कोई वीडियो है उसमें पता नहीं कौन सा फैक्ट है वो भी पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ना है सब कुछ, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए लगता है कि इन्वायरमेंट के लिए यार 2 दिन कम है, मेरे पास 2 ही दिन है लेकिन 2 दिन कम है, यहाँ से उठाओ। रिसर्च एक दिन में हो सकती है, रिसर्च का एक दिन उठाओ, यहाँ डाल दो, इन्वायरमेंट में डाल दो। पर वो फिर आपके ऊपर है, आपको रिसर्च फिर 2 घंटे में करनी पड़ेगी। अब आपके ऊपर है आपने क्या प्रायोरिटी देनी है, किसको कितना टाइम देना है, क्योंकि टाइम तो बराबर ही है ना, आप इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ये आप देख लो मैंने क्या टाइम टेबल बनाया है, दैट्स विजिबल। +2 इज़ फॉर द क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, एंड ये पिंक वाला ही देखो, ग्रीन वाला इज़ फॉर द वन हु वांट टू गो फॉर 2 मंथ्स, है ना। ये देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने रिवीजन ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च एंड कम्युनिकेशन लिखा है, फिर 27th को इंडियन लॉजिक और हायर एजुकेशन और इन्वायरमेंट लिखा है। फिर मैंने यहाँ एरोज बनाए हैं कि ये फ्लेक्सिबल है, मतलब 26 और 27 को ये तीनों 6 यूनिट्स रिवाइज हो जानी चाहिए। अब हो सकता है एक दिन मैं टीचिंग करूँ, साथ में शायद इंडियन लॉजिक कर लूँ और रिसर्च कर लूँ, क्योंकि ये तीनों बहुत हैवी टॉपिक्स हैं, ये एक दिन में करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये आप फ्लेक्सिबल रख सकते हो, पर करना 2 दिन में ही है, खत्म करना है 27 तक, यू हैव टू रिवाइज, ठीक है, लाइक दैट। ये बफर डे रखा है, वैसे एक ही रखा है यहाँ पे। यूजुअली मैं अपने टाइम टेबल में 2-3 रखती थी, कि कई बार आप नहीं कर पाते हैं, कुछ हो जाता है और आप नहीं नहीं यू कांट स्टिक टू द टाइम टेबल, है ना। तो वो मैं बफर डेज रखती थी, फिर उसको जस्ट कर देती थी, मान लीजिए यहाँ नहीं पढ़े तो ये बफर डे कैंसिल कर दिया, ऐसा कर लेती थी। तो ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 मंथ्स वाला है, आप देख लो इसको, बस एक बार दिखा देती हूँ मैं इमेज, ये देख लो, ये देख लो, ये ठीक है, और ये बफर, ठीक है, लाइक दैट। आपके पास जितना ज़्यादा टाइम है ना, आप उतना ईजिली कर पाओगे। कम टाइम भी है तो ऐसा नहीं है कि नहीं अब तो पॉसिबल ही नहीं है, इतने कम में होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप बेसिक जान लो, आप बेसिक जान लोगे, ट्रस्ट मी, मतलब उसके बाद आप गेसिंग कर सकते हो, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आ जाता है। अदर देन अगर आपको मान लीजिए एनवायरनमेंट में कुछ भी नहीं पता, पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, आप नहीं कर सकते, आपको ब्लाइंड गेस मारना पड़ेगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की ऑलमोस्ट ज़ीरो है, ऑलमोस्ट। तो इससे बेटर है आपको थोड़ा नॉलेज हो हर टॉपिक का, ताकि आप गेस कर सकें पेपर में, है ना। और उसके बाद टाइम दे सकते हो, 2 दिन में करना है, आप 4 घंटे लगाओ, 6 घंटे लगाओ, 8 घंटे, लेकिन फिर आपको पेपर 1 भी पेपर 2 भी देखना है। तो प्लान करो। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, प्लानिंग का बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। प्लान नहीं करोगे, आपको अभी पता ही नहीं चलेगा आपको कहाँ जाना है, कितने दूर जाना है, कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम है, कितना नहीं है। तो फिर उसमें मोटिवेशन भी नहीं आती, पता ही नहीं है टारगेट क्या है। तो आपका फ़ोकस फिर ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को 2 महीने बाद नेट निकालना है। आपका फ़ोकस होना चाहिए 6 अप्रैल को मुझे टीचिंग, 6 और 7 अप्रैल को 2 दिन में मेरे को टीचिंग ख़त्म करनी है, और साथ में 2 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, 4 क्वेश्चंस है, थोड़ा-सा एक आधा कॉन्सेप्ट मैथ्स का देखना है। तो मतलब ये है कि टीचिंग ख़त्म हो जानी चाहिए। तो यू शुड नो कि यू डोंट नो कि 1 जून को पेपर है, नहीं है, होगा, क्या होगा, क्लियर होगा, नहीं होगा। 7 अप्रैल को टीचिंग ख़त्म हो जाना चाहिए, ये गोल है, और इसी के बारे में सोचना है फिर एक बार आपका प्लान बन गया। क्योंकि आपको पता है ना कि बाकी का भी प्लान बना हुआ है, तो आप सोचेंगे नहीं फिर उसके बारे में कि यार अभी तो वो भी पड़ा है, अभी तो वो भी पड़ा है। जब टाइम है उस हिसाब से वो मैनेज हो जाएगा। टाइम टेबल बनाओ, रियलिस्टिक बनाओ, और हो जाता है, ठीक है। आई होप मैंने कवर कर दिया है सब कुछ पेपर 1 का मेरे हिसाब से। इफ़ there's स्टिल समथिंग लेफ्ट, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पेपर 1 में और कुछ है क्या? उम थोड़ा दिमाग खुला रखना बस पेपर में, क्योंकि पेपर थोड़ा-सा ट्रिकी हो गया है अब। इट्स नॉट लाइक सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, सीधे-सीधे पूछ रहे हैं आपसे कि हाँ, हमारे पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं था टाइप्स ऑफ रिसर्च में से। इट्स अदरवाइज़ नोन टू बी अ वेरी, वेरी गुड टॉपिक, है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये वाली रिसर्च, वो वाली रिसर्च, एम्पिरिकल, एक्सपेरिमेंटल, सो बहुत टाइप्स की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन भी नहीं था, नॉट इवन अ सिंगल वन। इन फैक्ट दे आस्क्ड अस कि इफ अ चाइल्ड हैज़ टू बी रिसर्च्ड अपॉन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल यू यूज़? अ चाइल्ड ऑफ, आई थिंक एज भी दे रखी थी। अब इसमें तो खुद का दिमाग है ना कि उसकी हिस्ट्री तो क्या ही होगी, उसमें लिखा था उसकी केस हिस्ट्री। अब 2-3 साल के बच्चे की क्या ही केस हिस्ट्री होगी, है ना? तो ऐसा दिमाग यू विल हैव टू अप्लाई इन द पेपर। तो वो आप सेम लेवल पे है, ऐसा नहीं सोचना है कि यार हमारी पेपर 1 की तैयारी कम है, किसी और की ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। आप बेसिक्स कर लोगे, आप सबके बराबर हो जाओगे, और किसी ने अगर बहुत कुछ पढ़ा भी है तो वो आने भी नहीं वाला। मतलब आई मीन ऐसा सोच तो सकते हैं ना, मतलब वो तो ऑब्वियसली आ तो सकता ही है, पर इट विल नॉट बी लाइक कि उसको 50 में से 50 या देखो,
अगर किसी ने मान लो 1 महीना बहुत एकदम खतरनाक वाली पढ़ाई किया है ना, और पेपर 1 की, और किसी ने मान लीजिए 3 मंथ्स की है, तो अब इस 1 मंथ वाले को यार थोड़ा-सा तो लगता है कि यार तो 3 महीने वाला है यार ऐसे। बट ट्रस्ट मी, अगर 1 मंथ वाले को 30 क्वेश्चंस आएँगे ना 50 में से, तो 3 मंथ वाले को 33 या 35 आएँगे। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, इनफैक्ट 35 भी नहीं, 33 इतना ही रहता है। क्योंकि जितना जो कॉमन चीज़ें हैं ना, वो पहले वही पूछते हैं। उसके जब टफनेस बढ़ाने लगते हैं ना, तो वो हर एक क्वेश्चन ठीक करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जस्ट कंप्लीट द सिलेबस फर्स्ट, उसके बाद जितना कंप्लीट एंड लर्न इट, उसके बाद जितना डेप्थ में जाना है जाते रहो। वो टाइम बचेगा तो, जो कि नहीं बचेगा वो तो लिख के ले लो, नहीं बचता है, टाइम होता ही नहीं है, इंग्लिश खुद इतना वास्ट है। पर पेपर 1 में फिर भी फोकस करना है। और अगर आप अभी जून नहीं टारगेट कर रहे हैं, दिसंबर टारगेट कर रहे हैं, देन देयर इज़ नथिंग बेटर देन दैट। आपके पास टाइम ही टाइम है, फिर तो पेपर 1 को बहुत अच्छे से करो, स्पेशली मैथ्स को दिन के 2 या 3-4 क्वेश्चंस करो ही करो, है ना? That will help you very, very much, very, very much. That's it, I think. Um, that's it about the video, I think. कुछ रह गया है, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि ये नहीं बताया, या कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, पूछ लीजिएगा. So yeah, that's it. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.